Good morning, class. I hope all of you are doing well and you are taking care of yourselves. Now, there was some portion that was pending from our side in terms of interpretation and discussion. So, I will start off with those areas. And before we start off, I would just like to mention a couple of special thank yous to Bhavya, who's been very kind enough for helping us with technical and SPSS work because she's also not even involved. So yeah, then special thanks to Shambhavi, Sejal, Radhika who have helped us in compiling the data. We have been working for quite some time now, and especially Shambhavi and Sejal because they've really like went through each data set and tried to identify certain errors and rectify them, and Smriti, who has been kind enough to lend some time to look for some research papers which would be very helpful. So she found a research paper which was published by Stroop Ridley himself in 1935. And that's a classic paper from where everything, all the concepts of Stroop and everything is coming. So you can refer to that. I will add that to the in the link somewhere. With the link, I will provide a link for that. All right. So before we get into the interpretation part, there are a couple of changes that you need to be making. Keeping in mind जो हमने पहले गाइडलाइन दिया था उसमें थोड़ा बहुत हम चेंजेस कर रहे हैं तो पहले तो आप null hypothesis डाल दीजिएगा. There will be no significant difference between the reaction time of congruent and incongruent trials. Then you add somewhere as soon as you mention the null hypothesis in the next line you can write that keeping in mind the keeping in mind the existing literature or in line with the existing literature, alternative hypothesis was formulated, and you mentioned that alternative hypothesis. I have just changed the statement and made it a little bit simplified. थोड़ा हमने simplify कर दिया. Reaction time of incongruent will be greater than reaction time of congruent trials. Right? Then in control variables, add education qualification because that was a control variable that we picked up consciously. We had missed out on that one the last time. And remember the duration time while writing the procedure, the duration of the stimulus, of the exposure of stimulus is 300 milliseconds. Okay, duration of exposure hona chahiye of stimulus is 300 milliseconds. In case if you've forgotten about this, and I know there were some confusions then, so I just want to rectify again. And procedure में आप लोग बाकी सारे चीज़ें मेंशन कर देना जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया about the total number of trials being 40, 20 were incongruent, 20 were congruent, how between each congruent and incongruent trial there was fixation point, what was the fixation point, then the exposure of the fixation point वो तो हम लोगों ने लिखवा लिया था वो certain था. Then talk about why the words or the fixation was point was coming in the center, justify that black background क्यों था, वो सारे reasoning देख के आप लोग procedure लिखना. Now scoring में आप लोग मेंशन करिएगा क्योंकि पिछले वाले गाइडलाइन में हम लोगों ने सिर्फ स्कोरिंग मेंशन किया है, लेकिन स्कोरिंग कैसे की है वो डिस्कस नहीं किया है. तो स्कोरिंग में आप लोग लिखिएगा कि स्कोरिंग वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइम ऑफ करेक्ट ट्रायल्स विच वी the unit for that was milliseconds or you can say ms. So average reaction time हमने निकाला हर एक पार्टिसिपेंट का फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायल. जैसे पार्टिसिपेंट 1 है, पहले हमने उसका पार्टिसिपेंट 1 का हमने पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स आइडेंटिफाई किए, कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस आइडेंटिफाई किए, फिर उसका एवरेज रिएक्शन टाइम निकाला. फिर सेम चीज़ हमने किया फॉर इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स, पहले उनको आइडेंटिफाई किए, फॉर उसका रिएक्शन टाइम निकाला. अब हमने ये रिएक्शन टाइम दोनों के कैसे निकाले, तो हम लोगों ने सिर्फ करेक्ट ट्रायल्स कंसिडर करे हैं, ओनली एंड ओनली करेक्ट ट्रायल्स. फर्स्ट वी आइडेंटिफाइड, पहले तो कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट आइडेंटिफाई किया, फिर देखा इन 20 कॉन्ग्रुएंट में से कितने करेक्ट हैं. देन उन करेक्ट ट्रायल्स का हमने टाइम, रिएक्शन टाइम देखा और उसका एवरेज निकाला. ठीक है, द सेम वॉज अप्लाइड फॉर इनकॉन्ग्रुएंट. Now the sample size was kept to be as 21. The sample size was kept to be as 21. So if you notice last time के sample size में 22 था, अब वो 21 हो गया है because we realized
after the previous results, we started skimming through each individual data and we realized that Ashwin का data, अब जिसने भी Ashwin के साथ किया है, please make note of this, that Ashwin का data सिर्फ 35 ट्रायल्स तक था, उसके 40 ट्रायल्स पूरे नहीं थे. तो हमने we have removed that data set and we have used paired samples test. Now I'll just give you an example as to how we did the scoring with a Excel sheet. Now for instance, हमने जैसे यहाँ पे identify करके प्रियंका को हम लोग ले रहे, पार्टिसिपेंट थी हमारी. तो हमने क्या किया, ये उसका पूरा डेटा है, कंप्लीट डेटा एज यू कैन सी. नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो विच आर द कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स. तो ये सी कॉलम से हमें पता चल गया कि कौन से कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स है. तो अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे देखो 0 जहाँ पे है वहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसी है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी है, राइट. 1 1 1 देखो यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसी है, यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसी है इस वाले ट्रायल में, और इस वाले ट्रायल में कॉन्ग्रुएंसी है. ठीक है. तो अगर हमें इनकॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का पहले कर लेते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स का हमें देखना है, तो मैंने 1 पिकअप किया. 1 पिकअप करके वी कैन ओनली सी द कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स. नाउ आई गो एंड आई सी हियर इन पी कॉलम में मैंने देखा कि इस पी कॉलम से हमें पता चलता है कि जो भी रिस्पोंडेंट ने, जो भी पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्स दिया, क्या वो करेक्ट था इनकरेक्ट था. तो 1 है तो मतलब करेक्ट था, और 0 है तो मतलब इनकरेक्ट था. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसने कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स में एंड में उसने 34 ट्रायल में उसने एरर किया, मे बी बिकॉज शी वॉज फटीग्ड. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो नाउ व्हाट वी डू इज़ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड कि कौन सा ट्रायल गलत किया है. अब हम लोग एवरेज निकालेंगे ऑफ द रिएक्शन टाइम. सारे मैंने करेक्ट ट्रायल्स मैंने कंसिडर कर लिए एक्सेप्ट फॉर द इनकरेक्ट ट्रायल. एंड नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे 19 हमने ट्रायल्स कंसिडर किए हैं. यहाँ पे एंड ऑफ द शीट में देखो, यहाँ पे 19 ट्रायल्स कंसिडर किए हैं और एवरेज आ रहा है 1.24. एंड इफ़ यू गो टू द कंपाइल शीट जहाँ पे हमने कंपाइल किया था, देखो यहाँ पे प्रियंका का कॉन्ग्रुएंट ट्रायल के हमने 1.24 रखा है. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स डू इट फॉर इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल. तो उसके लिए हमने को सी में वापस जाना पड़ा, जिससे हमें कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट कंडीशन पता चलता है. मैंने 0 लगाया, राइट. फ़िल्टर डाला था यहाँ पे पहले से ही, सो 0 लगाया है मैंने. अब ये सारे इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स हैं, देखो सारे इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स हैं, रेड येलो ब्लू रेड, है ना. तो ब्लू वर्ड था लेकिन रेड कलर में लिखा हुआ था. तो ये सारे इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स हैं. अब मैंने पी में जाके देखा कि कौन से गलत हैं. सो सी दिस इज़ एन एरर विच इज़ मेड, इधर एरर किया है, सबसे पहले ट्रायल में इनकॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायल में एरर कर दिया है. सो अब मैं इन सारे ट्रायल्स को छोड़ के बाकी सारे ट्रायल्स मैं सेलेक्ट करूँगी. तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है. ये वाला ट्रायल छोड़ दिया, ये रख लिया, ये छोड़ दिया बिकॉज ये इनकरेक्ट है, ये रख लिया है. ठीक है. सो अब हियर इफ़ यू सी आई हैव सेलेक्टेड ऑल ऑफ देम. सी हियर वी हैव टेकन 17 ट्रायल्स, दैट मीन्स 3 वर गलत, 3 ट्रायल्स इन द इनकॉन्ग्रुएंट, 3 ट्रायल्स इन द इनकॉन्ग्रुएंट कंडीशन वर इनकरेक्ट. एंड एवरेज यहाँ पे 1.49 है ऑफ द इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल. सो नाउ लेट्स गो एंड सी. सो प्रियंका का देखो 1.49 है इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल के. अब देखो ऐसे हमने सारे हर एक पार्टिसिपेंट के लिए हम लोगों ने ऐसे बनाया, एंड इस वाले शीट को हमने यूज़ किया है फॉर टी टेस्ट. ठीक है. सो this is this. So I'll just give you one more thing that we did, because last time insignificant आया, so we started also calculating the accuracy level और accuracy percentage. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने calculate कर लिया accuracy percentage of congruent trials. पहले हमने congruent trials जैसे हमने देखे हुए थे कि 20 में से एक एरर था जो कि एंड में था प्रियंका का, इफ़ यू रिमेंबर. तो वो हम लोगों ने यहाँ पे
वो वाला ट्रायल हटा दिया। अब देखो फॉर्मूला भी मैंने ऐसे रखा है 19, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट ट्रायल हटा दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स 20 इंटू 100। ठीक है, अब इनकॉन्ग्रुएंट कंडीशन में इफ़ यू रिमेंबर 3 गलत थे, 2 इनिशियल में गलत था और एक बीच में कहीं गलत था। तो ये रहा बीच, ये तो कॉन्ग्रुएंट वाला है, सो बीच में कहीं गलत था, तो हमने दैट मीन्स 17 करेक्ट ट्रायल्स हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स इंटू 100, right? So this is how we found out the accuracy percentage as well. I'll tell you why we did this once we get back. Okay, so this is how we basically did the scoring of each individual participant. This is where Sejal, Radhika and Shamvi had stepped in, and Shamvi and Sejal helped in a second process also. लाइक आई टोल्ड यू, हमने 21 पार्टिसिपेंट रखा हुआ है। ठीक है, 21 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस वाले सेट ऑफ डेटा के लिए, एंड हमने पेयर टी टेस्ट किया है। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। आई विल टेल यू व्हाट इज़ पेयर टी टेस्ट। ये क्यों किया वो टुवर्ड्स द एंड में आपको समझाऊंगी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज here with the new results, with the changes that we did, so we realized last time, because the results were significant, so we started calculating the accuracy percentage. हमने सोचा कि मे बी रिएक्शन टाइम में अगर नहीं आ रहा है तो लेट्स ट्राई टू सी कि एरर्स किस में, कौन से कंडीशन में ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट में ज़्यादा हो रहा है कि इनकॉन्ग्रुएंट में ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम लोग वो करने लग गए तो वी आइडेंटिफाइड दैट देयर वर सम मेजर एरर्स इन ईच ऑफ द डेटा सेट, इन ईच 22 पार्टिसिपेंट्स का डेटा सेट, विच वी रेक्टिफाइड, एंड दोज एरर्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोडिंग. So we rectified them, and now after rectifying all of that, we did the complete process of scoring again, compiled the average sheet, compiled the sheets again, and then we did the t-test again. And this time when we did the t-test, the results were significant. This is I'm talking about the reaction time की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने reaction time यहाँ पे देखो 0.000 है। ठीक है, which is less than the p-value of the significance level of 0.05. तो significant difference आ रहा है, मतलब that's the reason why we have the good news that alternative hypothesis has been retained. So good news, it makes our discussion a little bit, our lives a little bit more easier. So what are the tables that we have to keep in mind while we are making the result table? We have to keep in mind the first table, which is this descriptive statistics wala table, and the last one table, which is about the inferential statistics के बारे में बताता है। ये बीच वाला हमें ज़रूरत नहीं है। अब इन सब में भी हमें ये 3 टेबल बहुत ही ज़्यादा, ये 3 कॉलम्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टी वाला, डी एफ वाला और सिग्निफिकेंस लेवल 2 टेल्ड वाला। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये हम लोग यूज़ भी करेंगे इन द डिस्कशन। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें ये वाला मीन वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंटरप्रिटेशन में। नेवरदलेस यू मेक द कंप्लीट टेबल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का भी पूरा टेबल बना लेना, राइट? Okay, now what are we understanding from this? So like the p value हमें पता चल रहा है लास्ट वाले कॉलम से, सिग्निफिकेंस वाला कॉलम से। अब हमारा जो ये टी टेस्ट हुआ है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 95, अगर हम लोग 95% टाइम्स ये करेंगे टेस्ट, या फिर मतलब whatever test that we have done, we can be sure 95% की रिज़ल्ट यही आएगा जो भी अभी हम देख रहे हैं। okay, with slight variation, but it will be more or less the same. That means when we keep the confidence interval as 5%, as 95%, तो हम बोल रहे हैं कि there is a probability of 5% का error probability है ना। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हम बोलते हैं कि अब हम 5% को अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे, 5/100 कर देंगे, तो फिर आएगा 0.05, विच इज़ वॉट यू आर सीइंग हियर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी P is basically the error of probability. It should be the probability of error, it should be less than 0.05. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 95% ऑफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 5% की ही है, उससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता है।
तो जब हम टी टेस्ट करते हैं तो हमें ये वो इसके ऊपर हमें ये लास्ट कॉलम सिग्निफिकेंस वाला कॉलम हमें बताता है। अब क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% रखा हुआ है ना, तो हमारे हमने जैसे भी डिस्कस किया कि p का वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05 एंड एज वी कैन सी द p का वैल्यू इज लेस देन 0.05 और इससे हमें इनफैक्ट पता चलता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ द होल स्टडी दैट वी डिड इज़ एक्चुअली 0.000 विच मीन्स दैट कि इतनी ही प्रोबेबिलिटी एरर है विच इज़ अ वेरी गुड नंबर एक्चुअली, राइट। सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो दो सेट ऑफ रिएक्शन टाइम्स थे, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम्स में, इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये टी टेस्ट 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रखा था, ठीक है, के डिफरेंस पे, हाँ 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के डिफरेंस पे रखा था। बट कभी कभी हम टी टेस्ट 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रखते भी रहे हैं और 90% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी रखते हैं। तो जब हम 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1% का हमारे पास एरर है और 1% का एरर है तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1/100 दैट मीन्स 0.01 प्रोबेबिलिटी ऑफ से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा, वाई एम टेलिंग यू दिस है, जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो इनफैक्ट ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी सिग्निफिकेंट है, 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज द p इज़ लेस देन 0.01। सो दैट मीन्स अगेन इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा कॉन्फिडेंस, हायर कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। तो that's why we say, we can state in our interpretation that the hypothesis has been the alternative hypothesis, not the null. The alternative hypothesis has been retained and the null hypothesis obviously is rejected because the alternative hypothesis has been retained. वो inferential है। ये आपको मैंने complete table दे दिया है। Okay, now this is for extra ज्ञान। Now I was telling you, वो प्रियंका का sheet मैंने दिखाया था ना कि हम लोग पहले, because last time insignificant आया था तो we started calculating the accuracy percentage. In the process of that we realized that there were some errors in the data, so we've rectified that. Nevertheless, because we had calculated the accuracy percentage, that's why I'm sharing this information with you. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि there is a mean of there is अब हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के डिफरेंस में ही हमने फिर से टी टेस्ट किया, पेड सैम्पल टी टेस्ट ही किया हमने अगेन, ठीक है, और हमने देखा कि पी वैल्यू आया है 0.018 विच इज़ लेस देन 0.05, है ना। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का डिफरेंस पे इट इज़ मीटिंग द स्टैंडर्ड एंड दैट मीन्स इट इज़ सिग्निफिकेंट। लेकिन आप देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे इट इज़ नॉट मीटिंग, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट दिस रिज़ल्ट, क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमारा क्या सिग्निफिकेंस वैल्यू था, दैट p शुड हैव बीन लेस देन 0.01 था। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिर्फ 0.01 होना चाहिए था, राइट। तो ये हम लोगों ने तो ये 95 एक्यूरेसी लेवल वाला अगर हम डेटा देखेंगे तो फिर ये 99% 95% वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल का डिफरेंस का सिग्निफिकेंस वैल्यू मीट करता है, लेकिन 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का डिफरेंस का सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मीट करता है, क्या सिग्निफिकेंस लेवल नहीं मीट करता है, ठीक है। तो why I'm trying to tell you about this is that at different significant intervals, like data can meet different, ऐसा हो सकता है कि वो सारे significant सारे confidence intervals meet करे, 90 भी 95 भी और 99 भी, like the previous one. This is meeting all the three standards. This is less than 0.05, 0.01 and 0.1 also. But ये वाला डेटा है, ये हमारा डेटा सिर्फ दो कॉन्फिडेंस इंटरवल मीट करता है, 90% वाला एंड 95% वाला, बट 99% वाला नहीं करता है बिकॉज ये लेस देन 0.01 नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा ज्ञान।
नहीं समझ में आया तो मत टेंशन लेना, ठीक है। नाउ देयर वाज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट विच विल यूज़ इन द डिस्कशन इज़ दैट कि इन वैल्यूज़ से हमें पता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, बिकॉज ये पेयर डिफरेंसेस की बात हो रही है ना, जो भी हर एक पेयर्स हैं उसके डिफरेंसेस की बात हो रही है। जैसे हम एसपीएसएस ने प्रियंका का कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम के बीच में डिफरेंस निकाल के देखा होगा। तो ये टी डी एफ एंड आपका सिग्निफिकेंस पी वैल्यू यही बताता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता है, ये वाला टेबल हमें ये नहीं बताता है कि भाई कहाँ पे मतलब कौन सा वाला रिएक्शन टाइम इज़ ग्रेटर, जो कि हमारा हाइपोथेसिस है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी डिस्क्रिप्टिव वाले स्टैटिस्टिक्स से। अब इसमें कहाँ कहाँ से आएगी, इसमें मीन वाले कॉलम से आएगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये दोनों tables are very important. This will just tell you about the significant difference, but this will tell you कि किस तरफ कौन सा वाला ट्रीटमेंट में ज़्यादा स्कोर्स हैं या जो भी है ना। तो यहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमारा इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम में है मीन जो एवरेज निकल के आ रहा है 0.02 आ रहा है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए है 0.88, विच वी आर सेइंग फ्रॉम दिस वी कैन टेल कि the average reaction time of incongruent condition is higher than the average reaction time of congruent condition, right? So in fact आप लोग टेबल में ये भी चेंज कर देना, यहाँ पे एवरेज लिख देना, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन टाइम मत लिखना, एवरेज लिख देना। ऑल राइट, तो these two things, so with the help of this table we are now able to retain the hypothesis, because the hypothesis में हमने बोला है कि reaction time of incongruent condition is greater than the congruent, and with this we know कि significantly greater है, ठीक है। So here also if we look at this, देखो यहाँ पे accuracy level of congruent condition is higher than the incongruent condition, and there is a significant difference, वो हमें इस टेबल से पता चल रहा है। So that's the reason why these two tables are important. Okay, now let's go to the interpretation and discussion. Okay, now in the interpretation and discussion, जो भी उमेशा मैम ने ऑलरेडी आपको गाइडलाइंस दिए हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन डिस्कशन, उसके एडिशन में आप ये चीज़ें मेंशन करना। जैसे फॉर इंस्टेंस, सॉरी अबाउट दैट, फॉर इंस्टेंस सैम्पल साइज आप फिर से मेंशन करो कि 21 है, स्प्लिट मेंशन कर दो, स्प्लिट मेंशन कर दो कि स्प्लिट मेंशन कर दो मेल फीमेल का क्या है। तो वो आप लोग कंपाइल डेटा शीट से देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो, so basically female there are 9 participants and male there are 12 participants, ठीक है। you refer to that compile sheet, you'll be able to get the split between the male and female. Then you discuss, then you also mention about the duration of exposure of stimulus, और बोलो कि 300 मिलीसेकेंड्स हमने रखा था, एंड इसको आप थोड़ा कुछ रिसर्च से जस्टिफाई करो। स्मृति हैड फाउंड सम रिसर्चेस एंड इवन आई हैव फाउंड सम, सो वी विल शेयर दैट विद यू बाय द एंड ऑफ द डे टुडे। एंड देन यू मेंशन कि हमने जो हमने स्कोरिंग की ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, एवरेज स्कोर निकाला, फिर उन एवरेज रिएक्शन टाइम पर बोथ द कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स को कंपाइल करने के बाद हमने पेयर्ड सैम्पल्स टी टेस्ट यूज़ किया है। नाउ आई जस्ट वांट टू लाइक, ओके, मे बी आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पेयर्ड सैम्पल्स टी टेस्ट वाज द एंड ऑफ द होल डिस्कशन, ठीक है। विल कम बैक टू दिस। फिर आप मेंशन करो रिजल्ट्स की ऑन कंपेयरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ on comparing the reaction or the difference between the reaction time of congruent and incongruent condition using t-test. It was found that the p-value is 0.000, which implies that there is a significant difference between the reaction time of congruent and incongruent trials at the confidence interval of 95%. and अब क्योंकि ये since since p is less than since p is less than 0.5, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। फिर न्यू पैराग्राफ में आप मेंशन करो कि p वैल्यू फिर से बता दो एंड व्हाट डज इट मीन वो बता दो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर है। फिर उसके बाद आप अपने टी
कोर्स मेंशन करो और डीएफ जो कॉलम मैंने आपको बोला था कि ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी नॉट दिस वन ये कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों कॉलम्स। तो आप टी स्कोर मेंशन कर देना, डीएफ मेंशन कर देना। तो एज यू कैन सी दैट टी स्कोर इज़ नेगेटिव 5.319. Now negative doesn't matter, so you just write t score is 5.319. Negative is just telling us कि वो ज़ीरो से राइट हैंड के साइड में तरफ है कि लेफ्ट हैंड के साइड में तरफ, दिस इज टेलिंग कि वो नेगेटिव वाले तरफ में। सो इट्स जस्ट टेलिंग अस द नेगेटिव इज जस्ट टेलिंग अस द डायरेक्शन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज अ वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वो कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा है, बट एज अ वैल्यू हमें 5.319 इंपॉर्टेंट है। एंड डी एफ मैंशन करो कि 21 है, एन माइनस विच इज़ डी एफ होता है आपका n-1, आपका n इज़ हियर सैम्पल साइज इज 21, तो 20 है हमारा डी एफ। अब आप इससे बोल सकते हो, टी को देख के बोल सकते हो कि बोलते हैं एज यू वुड ऑल नो, आई विल स्टिल रिफ्रेश, जितना ग्रेटर टी होगा उतना ही ग्रेटर डिफरेंस होता है बिटवीन द टू सेट ऑफ scores. In our case it is the two set of reaction times, है ना। तो एंड बोलते हैं कि t should be greater than 2, right? So that's the basic standard that t should be greater than 2. So अगर हम ये standard लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पे we can definitely say that looking at the t scores we can definitely say that the high t scores indicate greater or great difference between the reaction time of congruent and incongruent condition, right? आप मेंशन करो अबाउट द मीन वैल्यूज़, फिर क्योंकि हमें टी के स्कोर से और पी के वैल्यू से तो पता चल रहा है कि हाँ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा कंडीशन में ज़्यादा रिएक्शन टाइम लग रहा है, जो कि हमारा हाइपोथेसिस क्वेश्चन है ना, हमारा स्टेटमेंट है। तो वो जैसे मैंने आप लोग को समझाया था कि मीन से हमें पता चलेगा, एज यू कैन सी। सो मेंशन द मीन वैल्यूज़। इन आर केस एज यू कैन सी द कॉन्ग्रुएंट कंडीशन का मीन वैल्यू, द एवरेज reaction time of congruent condition is greater than the average reaction time of incongruent condition, and of incongruent condition, and this indicates that the reaction time of incongruent condition is greater than the congruent condition। और हम ये इससे कंक्लूड भी कर सकते हैं और इससे हमारा हाइपोथेसिस रिटेन भी होता है एंड स्टेट द हाइपोथेसिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, just take some time to understand what I just said. So मीन को देख के हमें पता चला है कि कौन सा रिएक्शन टाइम एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि हमारे रिएक्शन टाइम जैसे आपने देखा था, अगर आपको याद है कि ये प्रियंका का ही ले लेते हैं। प्रियंका का इफ़ यू सी हियर हर मैक्सिमम रिएक्शन टाइम इज़ 23 सेकेंड्स एंड समवेयर मिनिमम इज समवेयर अबाउट लाइक 0.9 कुछ है। ऐसे ही सारे पार्टिसिपेंट्स के जो स्कोर्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं ग्राफ में अलग अलग ज़ीरो से बियॉन्ड स्प्रेड होंगे, लेकिन कहाँ पे एवरेज स्कोर, कहाँ पे पीक आ रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा, राइट। तो वो हमें मीन पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल एंड दिस कॉलम कि मीन कहाँ लाई कर रहा है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन। Okay, moving on, then you discuss the possible reasons as to why this is the result, why the reaction time is greater and incongruent, and you can link all the concepts that you've discussed and the factors that you've discussed in the introduction. So you can talk about automatization, ki how automatization can lead to either errors, and then it can also lead to greater, in our case it has probably led to greater reaction time. So you can introduce that concept and link it here. Then you can also link the factor of, let's say, age, because अगर हमने मान लो यहाँ पे ओल्ड एंड यंगर के बीच में कंपैरिजन क्या होता है, तब हम बहुत डेफिनेटिवली कर सकते थे, इसको यूज़ कर सकते थे एज अ रीज़न, बट यू कैन स्टिल स्टेट दिस बिकॉज हमने यंगर पॉपुलेशन को किया है। एंड देन यू कैन डिस्कस
another factor about fatigue. So as I was like in some of the individual, like आप जब data देखोगे तो just have a look at the individual, like throughout the data देखना कि congruent में कहाँ error हो रहा है, incongruent में कहाँ error हो रहा है. And at some places I did see that there are participants who have made errors more towards the end or even during the beginning. So अगर beginning में है, it could be because of novelty, like we saw in the case of Priyanka. उसने incongruent conditions में error किया है beginning में, है ना, and बीच में भी किया है, because maybe it's a new वो it's a new it's a new kind of test. It's a new task. So for her, and if you see her congruent वाला sheet, तो आपने देखा था कि उसने end में error किया है. तो end में अगर error किया तो it could be possibly because of fatigue, लेकिन वो congruent condition का है, तो उसको हम शायद उतना use नहीं कर पाएंगे. But I'm just trying to tell you, just try to look at these factors and link it with your behavioral report and the introspective report. So these are some dimensions. Then you also provide some research, then you also try to talk about some research. Sorry about that. Then you also talk about some research which has where Stroop color word test has been used among undergraduates or young adults, because हम लोग उस population पे गए हैं. And then you can again support your findings with those kind of studies. And then you can also talk about, you should also talk about the implications of the findings. So you can talk about जो हमने findings देखी है, जो हमने test किया है, क्या क्या किया है उसमें, उससे उसके बेसिस में और क्या क्या research possibilities हैं और कैसे कैसे स्ट्रूप को समझा जा सकता है. लाइक वी कैन काइंड ऑफ सी जेंडर, लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने एक एग्जांपल दिया है जेंडर डिफरेंस. एंड जैसे पिछले बारी जो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आया था, तो वी वर थिंकिंग व्हाई इज़ इट, like how is it possible that कि insignificant आया. तो we did think कि maybe it is because of the duration of the exposure of stimulus, and we thought कि शायद higher है इसीलिए higher side में शायद हम लोगों ने time duration किया इसलिए होगा. तो these are the possible other research possibilities from where you can also gain more understanding about the topic. तो आप वो वाले चीज़ें आप थोड़ा सजेस्ट करिए या बताइए क्या क्या कर सकते हैं. एंड देन एप्लीकेशंस, राइट. And then as the other guidelines that Umisha ma'am has given you, वो that remains the same. So वो सब आप follow करिएगा. Obviously you can mention about the limitations and all that, right? And then you can you mention in the appendix अपना individual data आप डालिएगा एंड कंपाइल डेटा भी डालिएगा. अब जब आप इंडिविजुअल कंपाइल डेटा डालेंगे तो नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आप हटा दीजिएगा. दोनों डेटा के मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ. आई जस्ट गिव यू लाइक अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ यू कैन डू इट. जैसे ये कंपाइल डेटा, ये सारे पार्टिसिपेंट्स का P1 P2 P3 कर दीजिएगा. डू नॉट राइट द नेम्स. And this is fine. Keep the heading as same gender and congruent reaction time, incongruent reaction time milliseconds bracket में लिख लेना आप लोग. ये बस अच्छे कर लेना. And then you can print it also, or you can just simply copy paste it, whatever is convenient for you. And then the individual data में आप लोग ये पूरा आप mention कर दीजिएगा. Now here what you do is that ये complete 40 trials का आप mention कर दीजिएगा. Now here you can write the heading as same as word and color, and यहाँ पे लिखना कि congruent और incongruent condition ये लिख देना, ये heading लिख देना, congruent condition ये heading लिख देना, और यहाँ पे correct और incorrect response आप heading लिख देना. तो जहाँ पे ज़ीरो है यहाँ पे बेसिकली ज़ीरो ऑल्सो, जहाँ जहाँ ज़ीरो है इट सिग्निफाइज इनकॉन्ग्रुएंट कंडीशन, एंड जहाँ पे वन है इट सिग्निफाइज कॉन्ग्रुएंट कंडीशन. यू कैन सी हियर, देखो जैसे यहाँ पे ये येलो वर्ड था और येलो कलर में लिखा गया है, रेड वर्ड था और रेड कलर में लिखा गया है. और इनकॉन्ग्रुएंट में यहाँ पे देखो जैसे कि वर्ड ग्रीन था ब्लू कलर में लिखा है, वर्ड येलो था ग्रीन कलर में लिखा है. और यहाँ पे ज़ीरो मीन्स
0 means incorrect and 1 means correct. तो आप लोग 0 1 मत लिखना, आप लोग एक चीज़ का हेडिंग लिख देना करेक्ट और इनकरेक्ट, वो लिख देना एंड देन यू गिव ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, लाइक दैट यू डू दिस. ठीक है. And you can then put the individual data in the appendix. Now I was talking to you about the paired samples t test, right? इसके ऊपर डिस्कशन करना है, जल्दी से कर लेते हैं. तो paired samples t test हमने क्यों यूज़ किया? ओके, सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्री टाइप के टी टेस्ट होते हैं. एक तो होता है वन सैम्पल्स टी टेस्ट. आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू हियर, ओके, जस्ट सो दैट इट्स इजियर. एक तो होता है वन सैम्पल्स टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट, एंड एक होता है individual samples t test. Alright. So one sample t test में क्या होता है कि जैसे कि अभी हमारे पास मान लो हमने इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स किए ही नहीं होते, सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स किया होता, हमारे पास सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स होता और हमें कंपेयर करना होता कि हमारे पार्टिसिपेंट्स का इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल के जो रिएक्शन टाइम है वो इंडिया में, मान लो हम कोई एक स्टडी की होती, इंडिया में ऐसी कोई स्टडी की हुई थी जिसमें हमने इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर देखा होता कि इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम एवरेज में क्या होता. तो अगर हम लोग को ये अपना डेटा, ये 21 लोगों का डेटा ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम को कंपेयर करना होता टू दैट नेशनल एवरेज ऑफ इनकॉन्ग्रुएंट रिएक्शन टाइम, तब हम लोग वन सैम्पल्स टी टेस्ट करते हैं. ठीक है. अब इंडिविजुअल सैम्पल्स टी टेस्ट तब करते हैं जब ऐसा होता कि जैसे हमारे पास दो ट्रीटमेंट हमने किए है ना, एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स थे और एक इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स थे. मान लीजिए अगर हमने ये दोनों ट्रीटमेंट दो अलग अलग सेट ऑफ सैम्पल्स के लिए किया था, दैट मीन्स बिटवीन सैम्पल डिज़ाइन अगर होता तो तब हम लोग इंडिविजुअल सैम्पल्स टी टेस्ट करते. ठीक है. तो इंडिविजुअल सैम्पल्स टी टेस्ट ट्रीटमेंट 1 हम एक टाइप ऑफ सैम्पल को देते एंड ट्रीटमेंट 2 दूसरे टाइप ऑफ सैम्पल को देते. ऑब्वियसली हम कोशिश करते कि ये दोनों सैम्पल्स समवॉट डेमोग्राफिकली सेम हो. ठीक है. पेड सैम्पल्स टी टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज repeated measures design, or within subject design, or paired samples design. So as you can see, within subject design जैसे हमने भी यूज़ किया है, हमने क्या किया, हमने सेम सैम्पल को ही दोनों ट्रीटमेंट पे एक्सपोज किया, इनकॉन्ग्रुएंट भी एक्सपोज किया और कॉन्ग्रुएंट भी एक्सपोज किया. ठीक है. तो इस और फिर देन इन दोनों सेट ऑफ डेटास को हमने कंपेयर किया है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पेयर्ड सैम्पल्स डिज़ाइन, बिकॉज हर एक पार्टिसिपेंट के लिए एक पेयर ऑफ डेटा था, राइट. एक कॉन्ग्रुएंट का था और एक इनकॉन्ग्रुएंट था, ऐसे आप याद कर सकते हो. देन द अदर ऑल्सो कब पेयर सैम्पल्स टी टेस्ट यूज़ होता है, प्री पोस्ट में भी होता है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जैसे समझना होता कि कि एक पर्टिकुलर अगर मैं फूड कंपोनेंट डालती हूँ तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, तो मैं प्री पोस्ट करती. पहले मैं प्री में करती कि अच्छा मान लो ये फूड कंपोनेंट या ये ड्रग्स मान लीजिए मैंने प्री ले लिया है व्हेन द सैम्पल वाज नॉट एक्सपोज टू अ सर्टेन ड्रग. देन post करती maybe after 21 days when I'm regularly giving them certain drugs, then I will do a post of that. So pre-post में भी ये use होता है. A lot of times it is also used in baseline kind of studies. So for instance पहले हम लोगों ने baseline establish कर लिया and then फिर हम लोग कुछ treatment देंगे और फिर हम लोग baseline treatment के बाद हम लोग फिर से डेटा कलेक्ट करेंगे एंड फिर हम लोग जो ट्रीटमेंट से पहले जो बेस पर आए इस्टेब्लिश था और ट्रीटमेंट के बाद जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उन दोनों को कंपेयर करेंगे. तो वो भी हम लोग पेयर्ड सैम्पल्स टी टेस्ट में यूज़ करते हैं. एंड एक्चुअली दिस इज़ व्हाट वी डिड. जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायल्स का हमने जब रिस्पॉन्स लिया तो वो क्यों लिया, क्योंकि हर एक इंसान के लिए एक्चुअली बेसलाइन अलग हो सकता है.
है ना, पर देयर रिएक्शन टाइम कैन बी डिफरेंट। तो पहले हमने सबका बेस लाइन निकाल लिया एवरेज करके, है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट से कर लिया, एंड फिर हमने इनकॉन्ग्रुएंट वाला हमने कॉम्पोनेंट डाला, एंड देन फिर हमने अपना ट्रीटमेंट चेंज किया, एंड देन फिर हमने वो ट्रीटमेंट दिया। फिर हमने जो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन था उसका रिएक्शन टाइम को बेस लाइन के रिएक्शन टाइम से काइंड ऑफ कंपेयर किया है। So I hope all of this is clear. I know we are working in a very, like restricted manner. So we are trying to do as much as we can so that you can understand this. अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़, है ना, तो we will try to have like a discussion class, a doubt class, and then you can ask your doubts there. Also, if you are having doubts in, like in understanding this data sheet and all, although I think I did my best to like explain it to you, but हो सकता है कि because of barrier of not being in front of you and explaining it to you, ऐसा हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। तो ये पूरा समझने के लिए you can always reach out to me again, and then since Sejal and Shamvi have worked on this very very extensively, you can also reach out to them. All right, so I hope this was helpful, class. Take care of yourselves. Okay.